तो आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सेकेंड पार्ट ऑफ द कैश डिजाइन। फर्स्ट पार्ट में हमने यही डिस्कस किया था, कैश डिजाइन, एलिमेंट्स, स्ट्रक्चर वर्सेस परफॉर्मेंस, जिसमें हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे कैश डिजाइन के रिगार्डिंग, और रेस्ट ऑफ द पॉइंट्स वी विल डिस्कस इन दिस लेक्चर। तो नेक्स्ट जो हमारा क्राइटेरिया है कैश डिजाइन का, वो है राइटिंग पॉलिसी। राइटिंग पॉलिसी इन द सेंस कि जब सीपीयू वर्क कर रहा है डेटा के साथ, तो सीपीयू may change the data and it will reflect the change to the main memory as well as to the cache memory for the future reference. तो for this purpose क्या होगा कि CPU ने जो change किया है डेटा, so that changes may be reflected to the cache memory as well as the main memory, either simultaneously to both or at different times to both. That means cache memory and main memory. In the third one, the write ones. Actually, there may be the cases when there may be more than one cache memories. So third one case I will describe later. So let's first discuss the write through policy. So whatever data are changed by CPU will be reflected to cache memory as well as the main memory simultaneously. The changes should be reflected, as we know, जो भी CPU ने changes किए हैं, instructions और data में जो भी manipulation किया है, वो main memory और cache memory में एक साथ ही reflect होगा. That means कि हर एक राइट ऑपरेशन के बाद, आफ्टर एवरी राइट ऑपरेशन, द मेन मेमोरी एंड द कैश मेमोरी बोथ विल बी अपडेटेड साइमल्टेनियसली. सो इन दिस सेंस, मेन मेमोरी इज ऑलवेज हैविंग द वैलिड कंटेंट्स, वैलिड डेटा. वैलिड इन द सेंस कि व्हाटएवर सीपीयू मेड चेंजेस, that will be reflected to the main memory also. But in the next write back policy, the main memory is not always having the valid contents. So we will see in, so firstly, initially what I told you, write through policy. So in this case, we can show it diagrammatically like this way, what it is shown in the diagram. Here, CPU, cache and main memory. So CPU do the changes to the cache memory and the main memory simultaneously. Okay. So now, here the operations occur in parallel. Because whenever we find the cache miss, so we know the required data is brought from main memory to the cache memory simultaneously. Sorry, not simultaneously, but on cache miss, the required data is brought from main memory to the cache, as well as the data is also brought to the CPU from main memory. That means from main memory, data is sent to the cache as well as the CPU. So these two operations occur in parallel. So this is the read operation. Read in the sense that CPU requires the data from cache. If the required data is not found in the cache memory,
So it will look for the main memory. So obviously the main memory will provide the data to the CPU, and simultaneously the data from main memory will be provided to the cache memory also. So that means कि राइट थ्रू पॉलिसी में हमने क्या देखा कि जब सीपीयू चेंजेस करेगा, मतलब सीपीयू मॉडिफाई करेगा इंस्ट्रक्शंस और डेटा को, तो ये कैश मेमोरी और मेन मेमोरी में साइमल्टेनियसली रिफ्लेक्ट होगा। और जब कैश मिस अकर होगी, मतलब कि डेटा कैश मेमोरी में नहीं मिलेगा रिक्वायर्ड डेटा बाय द सीपीयू, तो जो डेटा मेन मेमोरी से आएगा वो मेन मेमोरी से कैश मेमोरी और सीपीयू दोनों को साइमल्टेनियसली डेटा सेंड करेगा। तो अब हम चलते हैं इस पर राइट बैक। तो इस केस में क्या है कि जो भी राइट ऑपरेशन होगा बाय द सीपीयू, तो डेटा मॉडिफाई हो रहा है, तो फिर वो मेन मेमोरी में ना तुरंत ना अपडेट होके सीपीयू उसको कैश मेमोरी में अपडेट कर देगा और बाद में उसको मेन मेमोरी में अपडेट करेगा और उस लोकेशन को जो कि अपडेट हुई है उसको मास्क कर देगा, सो दैट कि ये जो चेंजेस हुए हैं वो मेन मेमोरी में बाद में अपडेट हो जाए। इसका जो एक्चुअली क्राइटेरिया वो ये है कि कैश मेमोरी में साइमल्टेनियसली अपडेट कर देगा जिससे कि ऑपरेशन फास्ट रहेगा और सीपीयू को मेन मेमोरी अपडेट करने में टाइम नहीं लगेगा, सो दैट द कि जब भी मेन मेमोरी से वो लोकेशन अगर कभी जरूरत पड़ती है, जनरली तो अगर सीपीयू वर्क कर रहा है तो मोस्ट ऑफ द टाइम कैश मेमोरी से काम चल जाएगा उसका अपडेटेड लोकेशन से, और फिर भी अगर कभी ऐसी कोई सिचुएशन आती है कि मेन मेमोरी में भी अपडेट करना पड़े तो फिर सीपीयू बाद के टाइम उसको अपडेट कर देगा मेन मेमोरी में फ्रॉम दिस मास्क लोकेशन। और ये जो लोकेशन मास्क हो रही है इसके लिए अपडेट बिट यूज करता है सीपीयू। तो अपडेट बिट सेट हो जाती है अगर इस तरह की सिचुएशन आती है। तो जब कभी कैश ब्लॉक लाइन या कैश ब्लॉक कैश मेमोरी के अंदर हमारा कैश लाइन कहलाता है, तो जब भी कैश ब्लॉक रिप्लेस होता है तो दिस लोकेशन is having an update bit which will be set and its contents जो ये set हुआ है ये contents हमारे मेन मेमोरी को बाद में राइट हो जाते हैं। अब इसमें क्या है कि because the updation of the cache and main memory are not done simultaneously so what will happen कि एक साथ तो अपडेशन होता नहीं है, तो जो अपडेशन कैश मेमोरी में हुआ है उसके करेस्पॉन्डिंग जो मेन मेमोरी लोकेशंस हैं दे आर हैविंग द डिफरेंट कंटेंट्स। इन फैक्ट वी कैन से दीज कंटेंट्स आर नॉट वैलिड वन। तो प्रॉब्लम अब इसमें क्या है कि दैट पोर्शन ऑफ द मेन मेमोरी जो कि हमारा इनवैलिड है सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए, सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के जब तक वो अपडेट नहीं हो रहा मेन मेमोरी में, तो अगर कोई डिवाइस एक्सेस करती है मेन मेमोरी लोकेशंस को तो इससे क्या है कि गलत कंटेंट्स उसको मिल सकते हैं। तो दैट मीन्स कि मेन मेमोरी एक्सेस ड्यूरिंग दिस पीरियड कि जिस पीरियड में कैश मेमोरी में अपडेट हो गया बट मेन मेमोरी में कंटेंट्स अपडेट नहीं हुए, इस पीरियड में अगर मेन मेमोरी एक्सेस होती है
तो ये फिर कैश मेमोरी के थ्रू ही अलाउ किया जा सकता है या किया जाता है। तो फॉर दिस पर्पज कॉम्प्लेक्स सर्किटरी will be used. For this purpose complex circuitry will be used. Third case है write once. So in this case there can be many cache memory in the system. For example, in multiprocessor system. So multiprocessor system, we will see it later, that is having the multiple processing units. तो इस केस में कि अगर राइट थ्रू पॉलिसी भी फॉलो करते हैं तो बाकी केसेस इसमें इनवैलिड कंटेंट शो कर सकती है और इनफैक्ट शो करेंगे, क्योंकि अगर एक कैश मेमोरी अपडेट हो जाती है तो बाकी तो अपडेट नहीं होंगी। तो इन दिस केस इन मल्टी प्रोसेसर सिस्टम where multiple cache memory and multiple processors are there with the common main memory being shared by all the processors. तो इसमें क्या है कि जो जितनी भी कैश मेमोरी हैं वो एक साथ अपडेट होती है, एक सेम क्लॉक पल्स के साथ एक साथ सब अपडेट हो जाती है इसमें। तो अब इसमें आगे चलते हैं हिट रेट। तो हिट रेट मैंने ब्रीफली पहले भी बताया था। हिट रेट मींस कि it is the percentage of request that result in hit. Hit मैंने बताया था कि hit is the operation कि in which if the CPU demands some information from cache memory, so the instance or situation of finding the data in cache memory is called as the hit. While the situation where data is not found in the cache memory is called as the miss, or better we call this as the cache miss and the cache hit. तो वो सिचुएशन जिसमें सीपीयू द्वारा डिजायर्ड डेटा कैश मेमोरी में मिल जाता है ये कहलाता है हिट। और वो प्रोसेस जिसमें सीपीयू द्वारा वांटेड और डिजायर्ड डेटा कैश मेमोरी में नहीं मिलता है, दैट इज कॉल्ड एज द मिस, और बेटर कैश हिट एंड कैश मिस। So we can relate it with the hit rate and with the miss rate. तो hit rate इस तरह डिफाइन किया जाता है कि total number of hits divided by the total number of hits plus miss. Similarly, miss rate is also defined as the total number of miss divided by total number of hit plus miss. That means total number of hit plus miss क्या दे रहा है हमें कि टोटल नंबर ऑफ हिट एंड मिस, ये हमें वो टोटल नंबर ऑफ एक्सेसेस ऑफ द कैश मेमोरी बाय द सीपीयू। तो जो हिट रेट है वो ये है कि हिट रेट इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ हिट डिवाइडेड बाय द टोटल डिफरेंसेस ऑफ द कैश मेमोरी बाय सीपीयू, and miss rate is defined as the total miss divided by the total references of the cache memory by the CPU.
तो हिट रेट हमारा इन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। पहला तो है साइज ऑफ द कैश मेमोरी, दूसरा है ऑर्गेनाइजेशन यूज्ड टू इंप्लीमेंट द कैश मेमोरी, we have already discussed the points on size of the cache memory, and organization used to implement the cache memory, we will be discussing it later on. And replacement policy, we have discussed it briefly, like first in first out, optimal, etc. Okay. And अब अगर सीपीयू का जो प्रॉपर डिजाइन है, डिजाइनिंग अगर प्रॉपर है, तो नियरली वी कैन फाइंड अप टू 99% ऑफ हिट रेट। मतलब हिट रेट क्या है कि हमारा एक प्रोबेबिलिटी देता है, परसेंटेज देता है कि कितने परसेंट केसेस में जो डेटा सीपीयू डिजायर कर रहा है, सीपीयू डिमांड कर रहा है, वो हिट कैश मेमोरी में मिल जा रहा है। मतलब कितनी प्रोबेबिलिटी है या परसेंटेज है कि जो सीपीयू डेटा डिमांड करे वो कैश मेमोरी में मिल जाए, दिस इज द हिट रेट। तो अगर ये रेट है तो ऑब्वियसली रेशियो है, तो इट विल बी ऑलवेज लेस देन 1। तो मिस रेट कैसे डिवाइड, इसी तरह निकल आएगा कि 1 माइनस हिट रेट इक्वल्स टू मिस, अगर रेशियो की बात करें तो 1 माइनस हिट रेशियो इक्वल्स टू मिस रेशियो, कि जितने परसेंट केसेस में डेटा सीपीयू को मिल जाता है कैश मेमोरी में तो वो हिट रेट हो गया, और नहीं मिलता तो मिस रेट हो गया। दोनों को ऐड कर देंगे तो इट विल कम आउट टू बी 1। तो जो कैश रीड ऑपरेशन है फॉर द, इस तरह होता है कि सीपीयू है कैश एंड मेन मेमोरी। तो सीपीयू कैश एंड मेन मेमोरी इस तरह है, कैश मेमोरी is located between the CPU and main memory, and simultaneously main memory is also connected to the CPU. Okay, whenever there is a cache miss, the data will be accessed from the main memory by the CPU. Cache hit तो ऑपरेशन यही है कि CPU को कैश मेमोरी से डेटा मिल जाएगा, और मिस मीन्स कि डेटा कैश मेमोरी में नहीं मिलेगा तो सीपीयू मेन मेमोरी को एक्सेस करेगा उस डेटा के लिए। तो हियर अगेन वी आर कमिंग टू द पॉइंट हिट रेशियो। तो दिस इज आल्सो अ फैक्टर यूज्ड टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ द कैश मेमोरी। तो इट इज बेसिकली द रेशियो, जो कि मैंने अभी बताया, कि अभी मैंने डिफाइन भी किया था कि हिट रेशियो हमारा क्या है, टोटल नंबर ऑफ हिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ हिट्स प्लस नंबर ऑफ मिसेस। ठीक है। तो हिट रेशियो हमारा वेरीफाई करता है लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस प्रॉपर्टी को, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। सो लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस की वैलिडिटी को हमारा हिट रेशियो वेरीफाई करता है। इसी तरह मिस रेशियो, तो ये उसका 1 माइनस करके हो जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ मिसेस डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ हिट्स प्लस नंबर ऑफ मिसेस। जो डिनोमिनेटर में क्वांटिटी लिखी है, नंबर ऑफ हिट्स प्लस नंबर ऑफ मिसेस, दिस मींस कि दिस इज इक्विवेलेंट टू द टोटल सीपीयू रेफरेंसेस फॉर द मेमोरी। तो इट इज क्लियर कि हिट रेशियो एंड मिस रेशियो दोनों को कंबाइन करके ये 1 हो जाएगा। तो कैश परफॉर्मेंस एंड एक्सेस टाइम। तो कैश डिजाइनिंग का जो बेसिक क्राइटेरिया होता है वो ये है कि मोस्ट ऑफ द एफर्ट इज डन इन डिक्रीजिंग द मिस रेट। परफॉर्मेंस मींस कि मिस रेट कम से कम हो और हिट रेट ज्यादा से ज्यादा हो।
That means probability of finding the desired data into the cache memory should be as much possible as we can. तो कैश मेमोरी को हम क्वांटिफाई कर सकते हैं इन 3 टर्म्स में कि हिट एंड मिस रेट, कॉस्ट ऑफ ए हिट एंड मिस पेनल्टी। तो जो कॉस्ट ऑफ कैश हिट है वो क्या है हमारा, कोई टाइम है जो कैश मेमोरी की एंट्री को एक्सेस करने में लगता है। तो इसमें हम आगे चलते हैं मिस पेनल्टी की तरफ। तो मिस पेनल्टी बेसिकली क्या है? मिस पेनल्टी सेज कि जब डेटा हमारा कैश मेमोरी में नहीं मिला सीपीयू को, तो सीपीयू विल फाइंड द डेटा फ्रॉम द मेन मेमोरी। तो दिस इज द पेनल्टी इन द सेंस कि कैश मेमोरी में नहीं मिल रहा है डेटा, तो इट विल रिक्वायर ए large amount of time to access the data from main memory. So this is referred to as the miss penalty. तो जो access time है that is defined as the access time is defined as the hit cost plus miss rate into miss penalty. क्योंकि access time हमारा hit cost के अलावा इस पर भी तो डिपेंड करेगा कि मिस रेट कितना है, और जो मिस रेट होगा उसका जो टाइम है प्रोपोर्शनेट टू मिस पेनल्टी है बेसिकली। तो हिट कॉस्ट प्लस मिस रेट इनटू मिस पेनल्टी। तो हिट कॉस्ट क्या है? हिट मींस कि टाइम फॉर एक्सेसिंग द कैश मेमोरी, जो कैश मेमोरी को एक्सेस करने में टाइम लग रहा है, दैट इज द हिट कॉस्ट। और मिस रेट इनटू मिस पेनल्टी मींस मिस रेट इनटू जो टाइम एक्सेस करने में लग रहा है मेन मेमोरी को, दैट। So miss penalty refers for the time, access time for main memory. Main memory को access करने में लगने वाला time, this is the miss penalty. Okay, so आगे चलते हैं इस पे। हाँ, ठीक है। तो effective cycle time, तो जो इफेक्टिव साइकिल टाइम है कैश मेमोरी का, वो एवरेज लेते हैं कैश मेमोरी और मेन मेमोरी को एक्सेस करने के लिए। क्योंकि अगर हम साइकिल टाइम की बात करेंगे तो कैश मेमोरी के जो साइकिल टाइम की बात है, तो वो कैश मेमोरी में अगर डेटा मिल गया तो ठीक है, और नहीं मिला तो फिर वो मेन मेमोरी से आएगा तो वो कई गुना टाइम लगेगा उसमें। तो इस तरह हम एवरेज टाइम लेते हैं कि कैश मेमोरी और मेन मेमोरी को एक्सेस करने का जो एवरेज टाइम है, दैट इज द साइकिल टाइम, इफेक्टिव साइकिल टाइम। तो इसमें जो प्रोबेबिलिटीज है हमारी एवरेजिंग प्रोसेस करने के लिए, वो हिट और मिसेस के लिए प्रोबेबिलिटी बेसिकली, क्योंकि एक अगर एक को एक्सेस करना हिट है तो मेन मेमोरी को एक्सेस करना मिस है। तो एवरेजिंग के लिए हमें दोनों को कंसीडर करना पड़ेगा। तो एवरेज साइकिल टाइम जो डिफाइन किया जाता है वो हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि टी इफेक्टिव एवरेज साइकिल टाइम इक्वल्स टू टाइम टू एक्सेस द कैश मेमोरी प्लस 1 माइनस हिट रेशियो टाइम टू एक्सेस द मेन मेमोरी। यहाँ टाइम टू एक्सेस द कैश मेमोरी ठीक है, और 1 माइनस एच टाइम टू एक्सेस द मेन मेमोरी। और एच हमारा क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैश हिट, यानी हिट रेट, और TC and TM are both referring to the time to access cache and main memory respectively. अब एक्सेस टाइम की अगर हम बात करें तो मेन मेमोरी से अगर हम रजिस्टर की बात करें और मेन मेमोरी की, तो मेन मेमोरी से जो रजिस्टर तक आने में टाइम है डेटा को, दैट इज अराउंड 20 to 50 क्लॉक साइकिल्स, बिकॉज मेन मेमोरी इज रफली 100 times slower than the cache CPU. Okay, so the time taken will be in this
रेंज। जबकि कैश मेमोरी एक्सेस अगर हो रही है तो फ्यू क्लॉक साइकिल्स होती है। जो L1 कैश मेमोरी है इनसाइड द सीपीयू, दैट इज रफली ट्वाइस और थ्राइस टाइम्स स्लोअर देन द सीपीयू। मतलब कि कैश इंटरनल सीपीयू कैश मेमोरी से सीपीयू का जो ऑपरेशन है वो दुगना या तिगना फास्ट होता है, और जो L2 कैश मेमोरी है उससे रफली 10 टाइम्स सीपीयू फास्ट होता है। तो इस तरह के डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ कैश मेमोरी एंड द लेवल ऑफ कैश मेमोरी, the cycle taken will be few clock cycles. Okay, so अब हम बात करते हैं कैश मिस टाइप्स। तो कैश मिस जो है वो 3 टाइप की होती है। एक तो हमारा कंपल्सरी मिस है, दूसरा कैपेसिटी मिस है, तीसरा कन्फ्लिक्ट मिस है। कंपल्सरी मिस मीन्स कि इनिशियली जब कैश मेमोरी एक्सेस होती है तो इनिशियली तो कैश मेमोरी में कोई डेटा नहीं होगा। तो इनिशियली एट द वेरी बिगनिंग CPU will find the data or locate the data. So obviously that will be found in the main memory. That will be a phenomenon of cache miss. So this is the compulsory miss. Compulsorily starting में तो मिस होना ही होना है, डेटा तो है ही नहीं कैश मेमोरी कुछ, तो कैसे उसको फाइंड करेगा। तो यानी प्रोग्राम स्टार्टअप के टाइम जबकि डेटा इस हमारा अनअवेलेबल है कैश मेमोरी। दूसरा कैपेसिटी मिस। तो हर एक कैश मेमोरी की एक सर्टेन कैपेसिटी होती है, और बिकॉज ऑफ दिस कैपेसिटी जो मिसेस अगर होती हैं दे आर द कैपेसिटी मिस। सो कैपेसिटी मिस इन द सेंस के डेटा नीड टू बी रिप्लेस्ड inside the cache memory from the CPU, sorry, inside the cache memory from the main memory contents. So here it is the compulsory miss, sorry, capacity की बात कर रहे थे ना, capacity miss। क्योंकि हर एक कैश मेमोरी एक मैक्सिमम जो भी कैपेसिटी है उतने ही तो डेटा होल्ड करेगी, उसके बाद ये मिस होगा ही होगा। मिस होगा मीन्स कि डेटा हमारा मेन मेमोरी से लाके रिप्लेस किया जाएगा। ओके, तीसरा है कन्फ्लिक्ट मिस। तो इन दोनों मिसेस के अलावा जो भी डेटा है दैट इज द कन्फ्लिक्ट मिस, यानी दैट इज नॉट द कैपेसिटी मिस एंड कंपल्सरी मिस, दैट इज कन्फ्लिक्ट मिस। Okay, so by this we have completed the discussion over the cache design and performance. That means structure of the cache memory versus its performance. We have completed it completely. Okay, so I am ending this meeting.